नहीं, it's okay. It's not about bothering. So कैसे हो My अमृत? name, I am good. If you remember me, my name is Amrit. I have contacted you multiple times regarding the preparation queries only. I gave, I participated in IIT Jam, like the last one, Okay. and secured 1521 rank. I have secured admission in DU as well. So this time what I was thinking was like my four subjects out of seven are like conceptually strong, and I am just what I lacked was the practice. And the three subjects which were I think oscillations, mechanics, and EMT, which lacked ठीक है. conceptual clarity at the time. So what I was asking was कि due to semester examinations and all, by the time I was free from it, ऑसिलेशंस आधा निपट गया था, तो मैं उसमें लाइव फिर मैंने आना सही नहीं समझा था उस टाइम पे, तो मैं फिर अपने प्रैक्टिस सेशंस देखने लग गया था जो पुराने थे मैथमेटिकल फिजिक्स के, एंड आई वाज एबल टू क्लियर सम like I was able to do some questions in which I was used to stuck at some part, and I learned how to approach a question. But what I am keen to ask is, sir, like still I have done every single thing that you have asked in class. I have prepared a timetable. I have allotted like set particular set of time to like इस time पे यही करना है. But still, sir, the execution is where I lack the most, sir. I'm very distracted by. This is very general doubt if I say so, but नहीं, very it's distracted. but it's an Is obvious what doubt ना, कि अगर कोई yes. भी अपनी प्रिपरेशन को डिले कर रही है तो it's an obvious doubt. So first I want to ask that you have got a DU. Why you are not going to DU? Like I really like it's a dream, sir. Really wanna go to IIT. okay, आप हो कहाँ से? आपने from where you have I done am BSc? from BSc from DU only, Which and college? Acharya Narendra Dev College. Okay. And you live in Delhi or yeah? No, I am from Udaipur, Rajasthan. Okay. So I went to Delhi. Well, at the time when I was like, I never had I had a clarity that I don't want to do engineering at the time of 12th only. So I somehow managed, though it was COVID times, but still the score was quite good. So I got admission in DU, Okay. and then it was from then only I was like IIT से करनी है, but last year हो नहीं पाया कोई बात मेरी नहीं. गलती के कारण. क्या लगता है क्या गलतियाँ क्या थी? सर वही मैं एक तो डिस्ट्रैक्टेड से आई थिंक लाइक आई इफ आई से सो बट इफ आई एम अलाउड टू बट आई थिंक दैट आई कैन डू इट लाइक द पोटेंशियल इज देयर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द concept fully but yeah I am distracted and be that like it's not about the concepts also you have to practice so and so number of questions to get it done. That is where I think I lacked questions उतने practice नहीं कर पाया था. See, This मैंने इसीलिए पहले पूछा because knowing yourself is very important. कि why you lack. First, if you want to prepare as a dropper, first thing you have to note is you have to change yourself. What are the things you have to change yourself? Because only a calendar is going to change. Until and unless you do not change yourself, nothing will change. Okay, so it will not matter. It's Jam 24 or Jan 25 until and unless you change what is needed to be changed. Okay. So saying that, if you have realized ki what are your mistakes, you have to work on that. Now you have asked that you want to prepare, how you want to prepare, and how to stay motivated and not get distracted. Is that the right question you want to ask? it is also a question, and I have prepared a list over here. That's okay. And like that question remains. And the other questions that I wanted to ask was that what I am doing right now is I am practicing, like I am attending all the videos from the Jam drive that you have provided. Like from 24, I am done with some of the questions. Like all, I think with the vectors, and I am done with most of the mathematical with physics videos of practice. And how I approach this situation is I have career endeavor material. So first I am watching those videos, and then I am going to solve examples and then to questions. So is this the right approach, or should I like do your assignments? See, I would suggest that you have to give limited time to a limited subject. Okay. As you can see, there are right now currently, if you see, there are 7 to 8 months left. How many Yes. 7 months are 210 days, and there are more than 210 topics we have to cover. So
facing the reality, we have to give one day to a small topic. Okay, this is the reality of IIT exam from now. Okay, so we do not have to panic about it, but at the same time we have to practice questions. We have to practice the questions in a limited way also, in a proper way also. So that's why I take practice classes where we get mix of PYQs and the questions that are important. आई नो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. बट अगेन सिंगल टॉपिक के ही 100 क्वेश्चन आई वुड नॉट सजेस्ट. कि अगर आप मान लो मैट्रिसेस कर रहे हो तो मैट्रिसेस के ही 100-150 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है. आपको अगर आइडिया आ गया टॉपिक का 40 क्वेश्चन में तो इट इज़ इनफ. Trying to understand. So sir, like what should be the bare minimum? Like if I said कि इस क्वेश्चन एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन कर लिए, so that is enough. आई वुड से हाँ, इतना काफ़ी है. अगर आप 40-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए मैट्रिसेस चैप्टर है, 40-50 क्वेश्चन करके आपको टॉपिक क्लियर हो गया है और आप पिछले 5 से 7 सालों के PYQ लगाइए. अगर PYQ सारे क्लियर हैं तो यू आर गुड टू गो. देन मूव अहेड. Like 50 questions PYQ included in them only. कैन बी डन. ओके, तो अगर आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 देखो कोई लिमिट नहीं है. बात आ जाती है टाइम की. किसी की स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की स्पीड स्लो होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर लर्नर की अपनी अपनी स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में. लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपको ठीक है एक आइडिया आ जाना चाहिए. और आइडियल वे में यही है कि यार जैसे हमारा जो फ्लो है सिलेबस का, जैसे मैं डिटेल कोर्सेज आपको करवा रहा हूँ, ठीक है. सबसे पहले आपको प्रायोरिटी रखनी है कि नोट्स में आपको सब कुछ पढ़ लेना है. क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स का यही कहना है कि 80 से 84 मार्क्स का पेपर नोट्स में से आया था डायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब आप उसमें से क्वेश्चन उठाओगे, सीधे पेज था वो पेपर, ठीक है. तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी कि यार मैं कहीं ज़्यादा ना पढ़ लूँ, नोट्स अगर पढ़ लूँगा या कम ना हो जाए या कुछ रह ना जाए, वो तो है ही नहीं मैटर, ठीक है. अनअकैडमी के सारे टीचर्स हैं जो भी सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं और सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही पूरा पैटर्न है. मेरे जो नोट्स हैं वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हैं, ठीक है. तो आप देखोगे 10 साल का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो नोट्स में से नहीं छूटेगा, ठीक. IIT JAM एग्ज़ाम जो है मोस्टली पैटर्न रिपीट रहता है, ठीक है. तो मेन ये है कि यार नोट्स में से अगर आपने एक बार नोट्स अच्छे से पढ़ लिए 7 सब्जेक्ट्स के, तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बाहर से आने वाला है. पहली चीज़ आप नोट्स को प्रायोरिटी दीजिए, उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा. दूसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस एंड रिविजन. नोट्स को आपने एक बार रिवाइज कर लिया, उसके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके बाद आती है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए डेली 2 से 3 घंटे आपको निकालने होंगे. अब आप ड्रॉपर बैच में हो, आप ड्रॉप ले रहे हो, ड्रॉप में आपके पास टाइम है इन सब चीज़ों को करने का, ठीक है. तो डेली 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस कम से कम करनी है कि आप क्वेश्चंस को करिए. उसमें जो है आपकी बिल्डअप होगा. बिकॉज होगा क्या, देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 घंटे का है. आप सोचो कि अगर एक भी बार आपने कभी प्रिपरेशन में 3 घंटा लगातार क्वेश्चन करे ही नहीं और सीधे एग्ज़ाम में आप जाकर कर दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. कम से कम आपके मेंटल ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए कि आप 4 घंटे रिगरस प्रॉब्लम सॉल्विंग को सर्वाइव कर सको, तब जाके वहाँ 3 घंटे प्रॉपर दिमाग चलेगा. और ये भी ट्रेनिंग है, ठीक है. ये प्रैक्टिस है जो आपको अभी से डालनी पड़ेगी, जो 6-7 महीने में एक हैबिट क्रिएट हो जाएगी आपकी. एंड आपको पता है ये ह्यूमन माइंड इज़ अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, ठीक है. अगर आपको स्टार्टिंग में ABCD इतनी बार नहीं लिखवाते तो आज हम कुछ भी नहीं लिख पाते, है ना. स्टार्टिंग में 2+2 ना सीखते तो आज इतनी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं कर पाते. तो जितना ज़्यादा आप हैबिट को, प्रैक्टिस की हैबिट को बिल्डअप करोगे उतना बेटर. Sir, and what, like one thing which I was also keen to ask was what I have planned over. I was planning to aim for TIFR, so that by the time I reach IIT JAM, I'll be like in a good situation. So according to my plan, what I have done is I have allotted 15 days to a subject. And like 4 subject, as I said, I have like quite a good conceptual clarity. As in, I have done mathematical physics in 15 days, and for these particular 4 subjects, my short notes are also ready. Like last year only, I prepared the short notes. My notes are completed. So like these, I am planning to give 15 days to these subjects, and like my weak subjects, as I said, were EMT, mechanics, and like optics and oscillations. So EMT, I'll be preparing with you only, and I'll do the questions the day itself and like study the notes, and then I'll give the rest of the time to this particular subject, which I am planning to do. Is what I'm thinking. I think it's a good enough plan. It's a good enough plan. Okay, and do this. I will say कि one subject at a time is a good plan because it gives you a clarity as well.
है ना। Yes, sir. और इट गिव्स यू यू नो सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि कुछ कंप्लीट हो रहा है। अगर आप 3 सब्जेक्ट लेके चलते हो तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है, तो इट गिव्स यू अ डीमोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग। तो ठीक है, प्लान अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, गो अहेड। And what I was thinking was also that I multiple times I am like कि नहीं वो सर भी इतना पढ़ा रहे, वो सर भी इतना पढ़ा रहे, तो मैं उससे भी घबरा जाता हूँ कि अमित सर भी क्लास ले रहे, तो पर मैं जाता नहीं हूँ सर उन क्लासों में। मतलब बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मेरी अप्रोच सही है ना कि सर मतलब फालतू में थोड़ा ही कर लेते हैं कि जबरदस्ती। मतलब जितना आप कर पाओ, ठीक है। हाँ हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, हर कोई अपने अपने आप में एक IITian है, सही है। जब आप पहुंच जाओगे तब आपको लगेगा जो चीज़ मैं कर रहा था मैं सही कर रहा था, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में अभी जो डाउट्स रहेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप अपना देखो बेस्ट दे रहे हो, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि अगर आप 10 घंटे दिन में पढ़ाई करते हो ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, ठीक है। किसी से आपको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली 10 से 12 घंटा अपना जो भी जितना भी दे सकते हो, देखो यार ड्रॉपर हो तो इतना देना भी चाहिए, ठीक है। अब ड्रॉप लिया है, पढ़ाई के लिए लिया है, फिज़िक्स सीखने के लिए लिया है, तो फिज़िक्स पे ही ध्यान रखो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव का पढ़ लो 6 7 8 घंटा, बाकी बुक पढ़ लो कोई फिज़िक्स की, ठीक है। बाकी अब ड्रॉप लिया है तो अपने आप को भी एक्सप्लोर कर लो कि हाँ यार मेरे को क्या, क्योंकि कॉलेज में तो हम इतना बिजी रहते हैं ना, कई बार हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो अभी टाइम है तो थोड़ा सा उस चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि व्हाट आई वांट, ठीक है, व्हाट आर माय गोल्स एंड डेस्टिनेशंस। yes sir. So like the final question that I am is like what is the bare minimum that should be kept for the preparation, as in कि इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने घंटे पढ़ना है, is that like that's all? सी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं ऐसे ही आपको कह दूं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर किसी का नेचर अलग अलग है। कोई बच्चा 4 घंटे में भाई 120 क्वेश्चन कर डालता है, कोई बच्चा 4 घंटे में 40 ही कर पाता है। तो ये बुराई दोनों में नहीं है, क्योंकि दोनों की अलग अलग प्रैक्टिस सेट है ना। जिसने 120 क्वेश्चन कर पा रहा है 4 घंटे में, उसने कड़ी तपस्या करी होगी, उसने मेहनत करी होगी, तभी वो आज कर पा रहा है, ठीक है। तो हर किसी का स्टेज अलग है। So number of hours should be the target, यार like 10 घंटे तो बैठना हाँ, है। मतलब अपना एक टारगेट लेके चलो। जैसे आपने कहा ना कि 15 दिन में मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलो कि यार उतने में कंप्लीट होना चाहिए, उसको एक मेन टारगेट बना के चलो, और डेली अपना बेस्ट दो, ठीक है। ये डेली अपना 8 से 10 घंटे, आपको जेन्युइनली पता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप जेन्युइनली उतना दीजिए जितना आप आराम से कर सकें। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 18 घंटे पढ़ो, सो मत, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। प्रॉपर स्लीप लेनी है, थोड़ा अपनी फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करनी है। अगर इस समय पर बीमार पड़ गए तो ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ही पढ़ा, मतलब अपनी तबीयत को नहीं देखते हैं, तो वो भी नहीं करना है कि बीमार पड़ गए तो 2 महीने वेस्ट हो जाएंगे, समझ लो, वो भी नहीं करना है। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए आप जितना पढ़ सकते हो रेगुलरली उतना पढ़ो, अच्छे से, जितना आपका शरीर साथ देता है, और रेगुलर मेहनत करो, यही है। बाकी जितना आप 8 घंटे निकाल सकते हो 8 घंटे, 10 घंटे निकाल सकते हो 10 घंटे, डेली 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए ज़रूर निकालो, बिकॉज मैंने बताया मेंटल ट्रेनिंग वो वाली बहुत ज़रूरी है। सर, और मैं आपके असाइनमेंट की जगह सर करियर एंडवर का मटेरियल कर लूं, क्योंकि वो ऑफलाइन लेता है, क्योंकि ऑनलाइन करना पड़ता है उसको, तो वो कोई फिर दिक्कत स्क्रीन आ जाती है नहीं, कोई उसमें। दिक्कत नहीं, कोई हाँ भी एक सर। मटेरियल जो आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी तरफ से तो कोई मनाही नहीं है। जैसा जो मटेरियल आपको अच्छा लगता है फॉलो करो, सभी मटेरियल अच्छे हैं, सभी मटेरियल IIT जैम के ही हैं, तो बढ़िया है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट अमृत, ठीक है, एक्सट्रीमली थैंक यू सर। ठीक है। प्लीज़ Thank लीव you, द sir. मीटिंग, मैं बाकी को इन्वाइट कर देता हूँ, ठीक है यार। ये थे अमृत जो प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम के लिए। बाकी आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो तो नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है यार, ठीक है। और नए बैचेस के साथ हमारे लास्ट ईयर के बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स रहे हैं, उनके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मेंटरशिप प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, आप अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करो मुझे कि सर मुझे भी 1-to-1 मेंटरशिप सेशन चाहिए, तो आपके लिए लेके आएंगे हम 1-to-1 मेंटरशिप सेशन। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं रेगुलरली, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, 2 से 3 रुपये पर क्लास पड़ता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को। बाकी इस डॉक्यूमेंट में जैम 25 जैम 26 में सभी बहुत सारी फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ये जो है लिंक ट्री अरोरा 10 जो आपको नीचे लिंक दिख रहा होगा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर आपको इस तरीके के सेशंस और देखने हैं तो यार।